This is Shriya Kamlesh Harhare from VisionGATE. Here I have with me Mr. Vedant Balasubramaniam. First off, heartiest congratulations on being a GATE topper. Thank you. I have jotted down a few questions, so let's start with them. Why did you decide to give the GATE exam? So initially तो मुझे हमेशा से IIT जाने का सपना था, but as time went on, JEE Advanced did not happen well. And then during my college, I finished my engineering. I had some different plans, thinking I'll go abroad or maybe I'll do work experience. So 1 or 2 years went by like that, and then for GATE 23, I continued with my job and gave GATE 23 exam, but nothing happened. I only got 2,700 rank. And at that moment I decided maybe I should leave my job. Then I met RSV sir, and then I decided this time I'll take a drop and I'll properly pursue GATE. So now here I am with my GATE 24 exam. Could you run me through your routine when you first joined VisionGATE and also 1 month before your GATE exam? So initially when I joined VisionGATE, I found things quite difficult because sir was teaching at a very high level, and that was actually expected in GATE exam. Initially for GATE 23, the level which I prepared was very low. And so when I joined VisionGATE, there were many concepts which I could not understand. For example, sir would ask questions and many other students would answer them, but I was not able to answer them. So I asked sir, what should I do? How should I get to their level first before I go even further? So sir said, Vedant, let's say a topic like permutation combination. You go through ROSIN, you try out some problems, try out the easy ones first, get a good feel for that subject, for that chapter. And then you can try the previous year questions and then maybe attempt some test series questions. So that was my initial phase of preparation. But over time, around let's say December, January, I only gave tests. Like I used to solve at least 100 questions every day. So that was my approach during the end of the preparation. What was your biggest source of motivation throughout your journey? So I came to know about VisionGATE through my friend Atharva. So he's currently in IIT Kharagpur, and last year he had secured All India rank 239. So one of my biggest motivation was that he was the same level as me. Like we were both in the same college for our undergraduate. And I noticed that a guy who is in the same level as me can actually crack IIT. Then even in my mind I thought, okay, if he can do it, then even I can do it because we were in the same level. And he also motivated me, you meet sir, you will get your guidance. And other than that, my parents were also very supportive. They said, beta, you try, you give your best, you're still young, you can do it. So those things really motivated me that I have to do it, I can do it. And when I met RSV sir, every time when I used to get less marks or maybe I could not understand concepts, then RSV sir motivated me. He said, see beta, every journey has ups and downs, but you believe in the process, you work hard, you will get the byproduct. Results are just byproducts. So you will get good results. You just work in the process. So वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था. Because जो पहले के टॉपर्स थे, जैसे तन्मय सुले, जयदीप पवार, जयदीप मोरे, सर ने इन सब की स्टोरीज मुझे बताई थी कि कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, हार्डवर्क किया और अपना ड्रीम्स अचीव किया. आरुषि यार मेरे ही कॉलेज से थी. So काफी हमारे लिए कॉमन पॉइंट्स थे जिससे मैं कनेक्ट कर पाया और जो मैं एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन यूज कर पाया. So, आप मुझे थोड़े कॉमन मिस्टेक्स बता सकते हो क्या जो हर गेट एस्पिरेंट करता है अपने प्रेप के स्टार्ट में और आपने भी करे होंगे तो आपने उनको ओवरकम कैसे किया? So, मैं अपना गेट 23 का अगर मैं बात करूं जिसमें मुझे 48 मार्क्स आए थे एंड 2700 रैंक आए थे. So उस टेस्ट में ना मैंने सिर्फ अराउंड 52 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे. मैं ये सोचता था कि जो आता है वो तो मैं राइट कर ही दूंगा, तो मुझे लगता था 52 अटेम्प्ट किए तो वो राइट हो जाएंगे. बट वो अप्रोच बहुत ही गलत थी. जो हमारा मेन पॉइंट होता है ना कि हमें लगता है कि हम जितना अटेम्प्ट करें वो सही करते हैं, वैसा होता नहीं है. हर स्टूडेंट का एक एक्यूरेसी होता है कि वो 70% करेक्ट करता है, बाकी गलत करता है. सो वो चीज़ मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन दैट. दे थिंक दैट इफ दे अटेम्प्ट ओनली द वंस दे नो दे विल गेट फुल मार्क्स. सो अदर देन दिस देयर आर मेनी अदर स्ट्रेटजीज व्हिच सर टॉट अस ड्यूरिंग आवर गेट. लाइक मैंने जितने मिस्टेक्स किए थे, जो मेरा अप्रोच थे, सर ने वो सब कुछ सही कर दी यहाँ पे आने के बाद, VisionGATE में आने के बाद. और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये होगा कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, हम एकदम हल्के से पढ़ते हैं. लाइक जैसे पेजिंग हो गई, हम सिर्फ देख लेते हैं थोड़ी इजी वाले क्वेश्चंस.
जो गेट में जो प्रीवियस ईयर में जो टफ पूछे थे, कंसेप्चुअल पूछे थे, जो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से आते थे, दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनमें से कोई सब पार्ट लेके वो फ्यूचर में पूछ सकते हैं गेट में। सो वो सब को डीपली अंडरस्टैंड करना, कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना, जैसे कोई एल्गोरिथम हो गया डीएसए की, तो वो सब अपने सर ने अच्छे से करवा दिया था कि हमें एल्गोरिथम मालूम था कैसे वर्क करता है, हम लिख पाते थे, एंड उसका हम जो कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होती थी वो भी हम एक्सप्लेन कर पाते थे कैसे आता। तो ये चीज़ काफ़ी गेट एस्पिरेंट्स मेरे ख्याल से गलत करते हैं, जिसके कारण मार्क्स थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जिनको कोई कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स में इश्यूज होता है, तो आप कोई स्ट्रैटेजीज जिससे वो स्पेसिफिक टॉपिक को ओवरकम किया जा सकता है? तो कोई भी टॉपिक हो, ऐसा होता है कि पहली बार हमने पढ़ा, हमें वो आ गया अच्छे से और हम कर लेते हैं, बट उसी तरह के टॉपिक्स भी होते हैं जो हम पहली बार पढ़ते हैं नहीं आता, दूसरी बार पढ़ते हैं फिर भी शायद नहीं आता, एंड ऐसे हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल, हर एक के अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ इंडेक्सिंग में होता था डीबीएमएस का, मैं पढ़ता था, लेक्चर अटेंड करता था, वीडियोस देखता था, फिर भी मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, और ये काफ़ी टाइम तक हुआ, इससे मेरा ऑलमोस्ट अक्टूबर या नवंबर में ही मुझे वो टॉपिक फाइनली क्लियर हुआ और मैं उसके पीवाईक्यू सब अच्छे से कर पाता था। और इसका जो मेन स्ट्रैटेजी है कि कैसे इसे हम टैकल करें, तो जब पहली बार हम पढ़ते हैं ना, सोर्स मटेरियल जो भी हो, जब से आप वीडियो हो या फिर आपके नोट्स हो, आप उससे एक बार पढ़ लो, फिर मेन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बाहर ज़्यादा कुछ गेट पूछता नहीं है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, उसका अंडरस्टैंड करो कंसेप्ट को कि हाउ दे हैव अप्रोच द प्रॉब्लम, व्हाट डू हैव टू थिंक व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, एंड उसके बाद अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा हो, वो आप टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टॉपिक को अगर हमें मास्टर करना है ना, तो उसका हमें लाइक एवरी मंथ और सो में हमें उस टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ मैं इंश्योर करता था, जो भी टफ सब्जेक्ट्स हुए जैसे COA, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन सब के मैं एवरी मंथ टॉपिक वाइज टेस्ट देता ही था। बस आपने मेंशन किया टेस्ट सीरीज के बारे में, तो आपके हिसाब से करेक्ट वे ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज क्या होंगे? सो पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने सभी पीवाईक्यूज नहीं किए हैं ठीक से, तो गेट में आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, बिकॉज जो 60 to 70% ऑफ द पेपर है ना, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही बेस्ड रहते हैं, एटलीस्ट यही हमारी ऑब्जर्वेशन है जनरल। और जो टेस्ट सीरीज हुए ना, टेस्ट सीरीज आर ओनली टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। टेस्ट सीरीज के मार्क्स को लेकर हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि कभी बुरे भी आ गए तो दुखी नहीं होना चाहिए, कभी अच्छा भी आ गया तो बहुत भी खुश नहीं होना चाहिए कि हमें अच्छे से आता है टॉपिक। शुड टेक इट एज अ सोर्स ऑफ रिविजन, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना वैसा। और जब बात पीवाईक्यूज की हुई, पीवाईक्यूज में ऑफ कोर्स आप जब पहली बार कर रहे हो तो सब कुछ सॉल्व कर लो, फिर जब आप दूसरी बार किसी सब्जेक्ट का किसी टॉपिक का पीवाईक्यू देख रहे हो, तो जब पहली बार आपने किया था तब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन जो आपको शायद नहीं आ रहे हो या फिर आपको लगे यार ये पहली बार में मुझे याद नहीं रह सकता, सो यू शुड मार्क देम आउट एंड सेव देम मे बी इन अ गूगल डॉक और समथिंग। और फिर जब आप रिवाइज कर रहे हो सब्जेक्ट को, तो सिर्फ नोट्स मत पढ़िएगा, उस क्वेश्चंस को भी आप गो थ्रू करिएगा, स्पेशली पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज देते वक्त। एंड जो टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ओएस का हो गया गैलरी, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, तो उस सबको आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए जो अच्छे क्वेश्चंस थे, उनके सॉल्यूशंस को भी, और टाइमली मैनर में एवरी मंथ या एवरी संडे और सो आपको उसे रिव्यू करना ही चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बार बार पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट करने के बाद भी हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो देखिए, हर एक की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक जो प्रोसेस होता है, जो जैसे विजन गेट में हमें सर ने प्रोसेस बताया था, आप इतना सिलेबस कवर कीजिए, फिर हर रोज इतने टेस्ट दीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। और हमारे साथ भी होता था, मेरे साथ भी होता, जनवरी में मैंने एक बहुत ही टफ टेस्ट दिया था और उसमें मुझे सिर्फ 50 मार्क के आए एंड बहुत लोग के भी बुरे मार्क्स आए थे, बट मेरे काफ़ी दोस्त थे जिनके बेटर मार्क्स आए थे, 65, 75 आए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा था ऑन दैट डे। बट मैंने सर से बात की, सर ने बोला देखो वेदांत, तुम्हारा एवरेज काफ़ी बेटर था, ये बीच में अप एंड डाउन होता है, बट गेट में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज तुम कॉन्फिडेंट रहो कि तुम अच्छा ही करोगे। तो अप्स एंड डाउन्स हर एक की जर्नी में होते हैं, बट यू मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं आज बुरा गया चलेगा, मैं कल अच्छा करूँगा। एंड मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने सैटरडे को वो टफ वाला टेस्ट दिया जिसमें मुझे 50 मार्क आए थे और मैं काफ़ी दुखी था, और सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि दुखी मत हो, अच्छे से करो। तो मैंने सर से बोला, सर हाँ मैं कल वाले टेस्ट में काफ़ी अच्छा मार्क लाऊंगा, और संडे को जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे 80 मार्क आए थे।
और मेरा वो ऑल इंडिया टेस्ट था, वो टेस्ट सीरीज का, तो उससे मेरा रैंक 2 भी आ गया था। तो मैं तब काफ़ी मतलब मुझे बेटर लग गया था कि हाँ अभी मेरा जो 50 मार्क वाला जो ऑब्स्टेकल था वो चला गया। एकेडमिक्स के अलावा आप फोकस कैसे रहते हैं और मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान में रख के अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं? तो मेरा कैसा रहता था, हमेशा से मैं अपना प्लान फिक्स करके रखता था कि मेरा डेली प्लान हो या फिर वीकली प्लान हो, कि उसको मैं कैसे अप्रोच करूँ, कितना मुझे मिनिमम एक दिन में करना है, वो मैं हमेशा इंश्योर करता था कि वो हो ही जाए। अब चाहे वो 6 घंटे में हो या 10 घंटे में हो, बट मिनिमम मैं माइंड में ऐसा रखता था कि मुझे एटलीस्ट 6 आवर्स तो आज पढ़ना ही है, बिकॉज मेरा तो मेन रीज़न था मैंने ड्रॉप लिया था, तो मैक्सिमम टाइम जितना मैं पढ़ाई को दे सकूँ मुझे वो इंश्योर करना था। अब रही बात हमारा स्ट्रेस रिलीफ वगैरह मेंटल हेल्थ की, तो ऑफ कोर्स होता था कि कभी कभी टेस्ट में बुरे मार्क्स आते थे, सो इन दोस पीरियड्स आई वुड टॉक टू सर, आई वुड टॉक टू माय मदर, आई वुड डिस्कस विद माय फैमिली कि हमें थोड़ा आज बुरा गया, मैं आज आंसर नहीं कर पाया क्वेश्चंस, तो पेरेंट्स दिलासा दे देते थे कि अरे रिजेक्ट मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, यू हैव कॉन्फिडेंस कि कल तुम कर लोगे। अपना जो गलत हुआ मैं उसको एनालाइज करता कि मैंने क्यों गलती की, मैं एग्जाम के टाइम पे सोच के नहीं पाया कि सही आंसर क्या था, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था या फिर ये सिली मिस्टेक थी या फिर मैंने कोई केस ओवरलुक किया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एनालाइज करो अपना जो पेपर गया, स्पेशली जो रॉन्ग है उसको देखो कि व्हाई डिड यू मेक दैट मिस्टेक। तो कहीं ना कहीं होता था कि लेट्स से नवंबर में मैंने 30 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे और मेरे सभी टेस्ट में 65 मार्क्स ही आते थे, 63, 68, 65 ऐसा, तो मेरा एवरेज 65 के आसपास था। और मैं डर गया था कि यार स्टैग्नेंट हूँ, ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा हूँ, 65 मार्क्स में यूजुअली 300-400 रैंक आती है, तो मुझे थोड़ा हाई एम करना था कि यार एटलीस्ट टॉप 100 तो सिक्योर करूँ। तो मैं सर से बात करता था, ट्रेन में बात करता था सर से, अकेले मिलता, जब भी मैं पूछता था सर मैं कैसे बढ़ाऊँ अपना मार्क्स, तो सर मुझे आइडियाज देते थे कि तुम अभी अपना वीक सब्जेक्ट देखो। तो मैं बोलता सर मेरा QC वीक जा रहा है, मेरा DPMS वीक जा रहा है, तो सर उससे मुझे क्वेश्चंस पूछते थे और उससे मेरा स्ट्रेंथ बढ़ा देते उन सब्जेक्ट्स में, ताकि वो क्वेश्चंस में रिपीट ना हो मिस्टेक्स। तो वैसा मैं अपना जो वीक पॉइंट था, वो मेरा काफ़ी बड़ा वीक पॉइंट था नवंबर में, तो उसको मैंने वैसे ओवरकम किया था। आपने गेट एग्जाम के दिन पे अपना एग्जाम एंजाइटी कैसे मैनेज किया? यस, सो हमारा ये टाइम एक्चुअली एक अच्छा पॉइंट था कि गेट CS के एक हफ्ते पहले हमारा गेट DA पेपर था। तो हम गेट DA पेपर के लिए, मैंने तो DA सच कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने सिर्फ CS का ही पढ़ा था। एंड लकीली एक बार क्या हुआ कि DA में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे थे ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क्स CS के ही थे। तो गेट DA पेपर हमारे लिए ऐसा ड्राई रन जैसा था, एक मॉक टेस्ट था, तो उसमें हम पूरा हमारा फ्री हिट जैसे हम खेल रहे थे। सो कैसा गया कि DA पेपर में मैंने फील ले लिया कि एग्जाम हॉल कैसा होता है, हाउ यू शुड प्रिपेयर मेंटली कि कैसे वो प्रेशर को हैंडल करूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया DA पेपर में थोड़ा केओस ज़्यादा था, बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था एग्जाम हॉल, थोड़ा प्रेशराइज हो रहा था। तो ये सब चीज़ें मैंने सर से भी डिस्कस की, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया और खुद भी सोचा कि CS में मेरा माइंडसेट कैसे रहना चाहिए। कि DA पेपर में थोड़ा घबरा गया था एग्जाम के बीच में, मैंने कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे दिए थे, तो ये सब चीज़ें मैं माइंड में रख के बैठा था पहले से ही CS के पहले कि अब मैं काम रहूँगा, ये मिस्टेक्स में दोहराऊंगा नहीं, क्वेश्चन ना आए तो मैं क्या करूँ, सब मैंने अपना स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली थी। तो ये DA पेपर हेल्प मी अ लॉट। एंड असाइड फ्रॉम दैट जो CS पेपर था उसके 1-2 दिन पहले मैंने अपने आप को बोल दिया था कि अब मेरा प्रिपरेशन हो चुका है, अब जो लास्ट 2 दिन है मैं कुछ ऐसा नया चीज़ नहीं पढ़ूंगा, जो पहले से ही पढ़ा है या तो उसको रिवाइज करूँ या फिर बस मेंटल रेस्ट लूँ। ऑफकोर्स मैंने कुछ बाहर एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें नहीं की, खेलने वगैरह मैं गया नहीं था, बिकॉज थोड़ा मुझे रिलैक्स रहना था, तो बस मैंने वही चीज़ें फॉलो की और अपने आप को रिलैक्स रखा, वैसे ही मैं गया। आपने इंश्योर कैसे किया कि आपने सारे सेक्शंस को इफेक्टिवली अटेम्प्ट किया? यस, तो जो CS पेपर था मेरा सेट 1 था, राइट, एंड व्हाट आई डिड वाज, मेरा हमेशा से जो जितने मैंने 60 to 70 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उन सभी फुल लेंथ टेस्ट में मैं वैसे ही फॉलो करता था जो मैंने गेट में किया। मैं पहले वो सब टॉपिक से क्वेश्चंस करता था जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल DS में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मुझे आता है, मैं अटेम्प्ट कर लूँगा, राइट होता है मेरा हमेशा, तो मैं एग्जाम में पहले DS वाले क्वेश्चंस ढूंढ लेता था। एंड लास्ट ईयर के टॉपर ने मुझे ये बताया था कि 2 मार्क्स वाले पहले कर लेना,
एंड मैं भी वही करता था। मैं हर फुल लेंथ टेस्ट में मैंने पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, गेट में भी वही किए। जो 2 मार्क्स थे क्वेश्चन नंबर 35 से 55 उन सबको मैंने पहले अटेम्प्ट कर लिया था, और उसके बाद मैंने 1 मार्क वाले में गया। एंड इवन 2 मार्क वाले में भी मैं पहला वही टॉपिक्स करता जो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कोई क्वेश्चन मिल गया जो मुझे उतना नहीं लगा, मैं अटेम्प्ट करता था, फिर मार्क फॉर रिव्यू करके उसको बाद में रिविजिट करता था। बट ये तो मेरी अप्रोच थी। हो सकता है दूसरे लोगों को जो सीए जाते हो उनको वो कंफर्टेबल लगे, तो जिनको जो कंफर्टेबल लगता है ना उन्हें वही फॉलो करना चाहिए। तो जो आप प्रैक्टिस टेस्ट में करते हो वही आप गेट में भी करो, तो वही आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स भी देगा। आपने डिस्ट्रैक्शन से कैसे टैकल किया, जैसे कि सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह वगैरह से? यस, तो मेरे फ़ोन में जो विजेट होती है स्क्रीन टाइमर वगैरह, वो मैंने अपने होम पेज भी लगा ली थी कि हर रोज़ मैं देखता। इनिशियली ज़्यादा होती थी, मैं यूट्यूब ज़्यादा देखता था, डिस्ट्रैक्ट इजीली हो जाता था, तो मैं देखता था अरे यार दिन में 3-4 घंटा अगर फ़ोन में इस सब में जा रहा है, दैट्स अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं हर रोज़ सोने के पहले मैं वो देखता ही था आज मैंने कितना टाइम किधर स्पेंड किया। तो वो कैसे मतलब माइंड में वो इफेक्ट ला देता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1 या 2 महीने बाद आप वो मिनिमाइज खुद से ही कर दोगे, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की। फिर दूसरा था, मैं सब जगह डिंडोरा पेट के रख दिया था कि यार मैं गेट के लिए पढ़ रहा हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। एंड जो मेरा पीयर ग्रुप था, जैसे मेरे फ्रेंड्स थे ऋषभ एंड डॉली, हम तीनों जन हर रोज़ पूरा दिन मिलके ही पढ़ते थे। तो अगर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए या बात भी करने लग जाए तो हम बोलते थे एटलीस्ट फ़ोन तो नहीं देखेंगे, हमें अगर ब्रेक लेना है तो हम एक दूसरे से ही बात कर लेते थे। तो वैसे मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखता था एंड अपने फ्रेंड्स से, सर से, तो यहाँ सबसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि आप पूरा अपना जर्नी रिपीट कर सकते थे इन अ डिफरेंट वे, तो आप कुछ चेंज करते या सेम रखते? यस, सो अगर बात रही सेम रखने की, तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया था, मैंने कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया था सर का। और ये चीज़ मैं वापस दोहराता कि बिकॉज एक चीज़ मैंने बहुत मेरे दिल को करीब लगी कि सर ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो सेम टू सेम गेट में आ गए थे। और उसका एडवांटेज मुझे ये मिला कि उस क्वेश्चन में अगर दूसरे स्टूडेंट्स को 3 मिनट लग रहे थे, मेरे 2 सेकंड में हो गए थे, बिकॉज मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर टिक किया, आगे चला गया। सो ये मैं अगर इसमें मैं कुछ चेंज भी करूँ तो मैं यही करता कि यार पिछले स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए थे VisionGATE के, उनसे मैं सर के मैक्सिमम क्वेश्चन और लिख लूँ, उनका और बेटर एक कलेक्शन बनाऊँ, गूगल डॉक्स को थोड़ा अरेंज करूँ। बिकॉज लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना, तभी नोट्स उतने काम के नहीं आते, बिकॉज तुम इतने टेस्ट दे चुके होंगे कि ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर बाय हार्ट, ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। उस टाइम पे सिर्फ जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो गेट पूछ सकता है, वही क्वेश्चंस तुम्हें रिवाइज करने होते हैं, बिकॉज वही आते भी हर साल नहीं होते। ये सब भी वही हुआ। मैंने 2-3 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे कि आएंगे, उनमें से एक आ गया था, वो जिसका आंसर n log n था, रिकरेंस वाला। तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी कि हाँ ये मुझे करना ही है। अगर मैं वापस गेट दूँ तो ये चीज़ मैं सबसे पहले इंश्योर करूँगा कि क्वेश्चंस का जो कलेक्शन हो वो मेरे पास लगेगी है। अच्छा, और आपके कोई मैसेजेस या टिप्स सजेशंस अभी गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी बिगिन कर रहे हैं अपना जर्नी? यस, तो नंबर 1 चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, अपने आप पे पूरा फेथ रखो एंड कॉन्फिडेंस रखो। तो मैं भी इनिशियली मैंने लास्ट ईयर 2700 रैंक आया था, बट कंसिस्टेंटली मैंने एफर्ट किया, डरा नहीं मैं बिल्कुल भी। सर में फुल बिलीफ रखा था मैंने, तुम्हारा जो भी टीचर हो उसमें बिलीव रखो और उससे कंटिन्यूस डिस्कशन करो। जो लोग कहते हैं पर्सनल ट्रैकर, प्रोग्रेस ट्रैकर, मैंने ऐसे कोई ट्रैकर तो नहीं बनाया, मैं सीधा जाके सर से पूछे थे, सर लास्ट ईयर के टॉपर और मुझ में अभी कितना डिफरेंस है, मुझे और क्या क्या करना है कि मैं कैचअप करूँ। तो सर इनिशियली बोलते थे कोई ये टॉपिक है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं आता, थोड़ा पढ़ो इसको, थोड़ा इसका डीप क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर उसके बाद अगस्त नवंबर में सर ने बताया तुम्हारा भी लेवल है वेदांत 300 रैंक, सो इस मंथ में तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चंस करनी चाहिए, अब तुम नोट्स वगैरह मत पढ़ो, तुम दिन में एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस कर दो। तो ये सब चीज़ें मैं सर से पूछता था। तो तुम्हें भी एटलीस्ट नवंबर दिसंबर वगैरह में अपना जो इंस्ट्रक्टर जो तुम्हें कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस करो या 50 क्वेश्चंस करो, वो तुम्हें फॉलो करना ही है, बिकॉज वो हेल्प करता है एंड दे आर एक्सपीरियंस, राइट। सर काफ़ी एक्सपीरियंस है, इतने साल से हमें पढ़ाए थे। तो मैंने सर में काफ़ी मतलब अपना ट्रस्ट लगा था कि सर जो बोल रहा है वो मैं 100% फॉलो करता था। एंड जो दूसरी बात हुई कंसिस्टेंसी,
हर रोज तुम्हें पढ़ाई करनी ही, अब डिपेंड करता है कि तुम 10 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, बट अपना जो टारगेट रखते हो उसको फॉलो करो। कभी भी बैकलॉग मत बढ़ने देना। जो टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नो वन, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग व्हिच यू हैव राइट नाउ, एंड अगर तुम पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो और भी अच्छा है, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो वैल्यू दो टाइम को, कोई भी लेक्चर मिस मत करो। जो जिस दिन पढ़ा है ना उसी दिन उसको रिवाइज कर दो, इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज जो मेमोरी रिटेंशन है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तुम जो मई में पढ़ोगे वो तुम्हें अगस्त में याद नहीं रहेगा, तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिविजन के लिए PYQs एज वेल एज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, कंटिन्यूस जितने टेस्ट दोगे उतना तुम्हारा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट उतने याद रहेंगे। टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से ही याद रहते हैं, नोट्स रिवाइज करने से उतना याद नहीं रहता, तो ये चीज़ माइंड में रखना। और लास्ट इज कॉन्फिडेंस। अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना, कोई भी एग्जाम तुम्हें इजीली निकल जाएगा। मैंने गेट एग्जाम के पहले ही सोचा था यार कुछ भी हो जाए मैं 2.5 आवर्स में पेपर कंप्लीट करूँगा, और मेरा हो गया था। जो लास्ट के 30 मिनट्स थे मैं बस देखते गया कौन से क्वेश्चंस मुझे डाउटफुल लगे वो, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है। Thank you for your inputs and time. Again, heartiest congratulations on securing such a great rank. VisionGATE wishes you the best for your future endeavors.